کیا ہوتا ہے اگر ایک عام لڑکا اپنی زندگی کی سب سے خطرناک دعا ٹیسٹ کرنے نکلے اور پھر وہ ایک ایسے اندھیروں میں پھنس جائے جہاں اس کی زندگی کا ہر پل موت سے ٹکرا رہا ہو۔ میڈز 2024 ایک ہارر مووی ہے جو صرف آپ کو ڈرائے گی ہی نہیں بلکہ آپ کو ایسے سوالوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گی جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ آج ہم بات کریں گے اس فلم کے پلاٹ ٹویسٹر، اس کی خوفناک کہانی اور اس تقریر کے بارے میں جو آپ کے حوصلے کے امتحان لے گی۔ تو آپ اگر ڈرے نہیں ہیں تو اس مووی کا بریک ڈاؤن ضرور دیکھیں۔ اب اس کہانی کی سٹارٹنگ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے رومن کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈرگ ڈیلر کے پاس آیا ہے پارٹی کے لیے نشہ خریدنے، کیونکہ آج اس کا برتھ ڈے ہے جس کے لیے اس نے پارٹی رکھی ہے۔ اب یہاں سے نشہ لینے کے بعد رومن اپنے ڈیڈ کے عالیشان کار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا جسے پھر وہ گاڑی میں ہی پھینک دیتا ہے، پر تبھی اسے خیال آیا کہ اوہ مائی گاڈ، میں نے اتنی بڑی کر دی ہے، گاڑی کے اندر ہی سگریٹ پھینک دی۔ اس لیے وہ جلدی سے کار کو روک کر اترا اور سگریٹ باہر پھینکنے لگا، لیکن تبھی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جو اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ لڑکی کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی جو گھبراتے ہوئے فوراً آ کر رومن کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ لڑکی دیکھنے میں کافی عجیب لگ رہی تھی، اس کے کپڑے بھی کافی زیادہ گندے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی لیب یا پھر ہاسپٹل سے بھاگ کر آئی ہو جو حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس کا برتاؤ بھی کافی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اب رومن اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے، پر وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی اور بس روتی ہی رہتی ہے۔ تب اس کی مدد کرنے کے لیے رومن ایمرجنسی نمبر پر فون کرنے لگا، لیکن اس نے نوٹس کیا کہ پولیس کے نام سے لڑکی اور گھبرا رہی ہے، تو اس نے فوراً سے فون بند کرتا ہے اور خود ہی لڑکی کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ڈراپ کہاں کرنا ہے۔ اور وہ بھی کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ رومن گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ بیچ بیچ میں بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد لڑکی ایک ریکارڈر نکالتی ہے جس کے اندر کچھ کمانڈو یہ بول رہے تھے کہ ہم جس سبجیکٹ لڑکی پر ایکسپیریمنٹ یعنی تجربہ کر رہے تھے، جس کا نام ہم نے C39 رکھا تھا، وہ بھاگ نکلی ہے۔ اس کی عمر 25 سال ہے۔ اب لڑکی اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی سچ میں وہ کسی تجربے کا حصہ تھی، مگر ظاہر ہے رومن کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور اب اچانک لڑکی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ عجیب طرح کے اشارے کرتے ہوئے گاڑی پر اپنا سر مارنے لگتی ہے۔ اس کے پاس ایک چھری بھی تھی جس سے وہ خود پر وار کرنے لگی، حالانکہ رومن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکی بلکہ اس پر ہی گر کر اپنا خون رومن پر لگا دیتی ہے۔ تبھی وہ سیٹ پر گر گئی اور اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر رومن پوری طرح گھبرا گیا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ برتھ ڈے والے دن کیا ہو گیا ہے اور اب میں کیا کروں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب کسی طرح وہ باقیوں کی نظروں سے بچتا ہوا گاڑی اپنے گیراج میں لے آتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے لڑکی کو چیک کیا مگر وہ نہیں اٹھتی۔ رومن کو گھبراہٹ سے حالت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ ایک تو وہ خود بھی خون میں لت پت تھا، اوپر سے اس کی گاڑی میں ایک لاش تھی جو بہت ہی خطرناک بات تھی، اسے پارٹی میں جانا تھا اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خیر اب خود کو سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے نہانے گیا۔ نہا کر آنے کے بعد وہ خود کو ہی کوستا رہتا ہے کہ کاش میں گاڑی نہ روکتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ تبھی اس کے ڈیڈ کی کال آتی ہے جو رومن سے پوچھ رہے تھے کہ گاڑی وغیرہ سب ٹھیک ہے نا، جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے ڈیڈ کو گاڑی کتنی پیاری ہے، اور اسی وجہ سے جب رومن نے گاڑی میں سگریٹ پھینکی تو اس نے فوراً سے گاڑی کو روک دیا اور اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ اپنے ڈیڈ کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ گاڑی بالکل ٹھیک ہے اور فون رکھ دیتا ہے۔ وہ گاڑی کو چیک کرنے لگا لیکن وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مری نہیں تھی، بس اس وقت زخمی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور یہ بات کافی چونکا دینے والی تھی کہ اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی وہ زندہ کیسی تھی اور اس میں طاقت کیسے باقی رہی کہ وہ اٹھ کر بھاگ بھی گئی۔ اس کا جواب ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اور یہی چیز سوچ کر رومن ابھی اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ تبھی دروازے پر کوئی آ جاتا ہے۔ رومن جب چیک کرنے گیا تو وہاں اس کی دوست تھی جس کا نام اینا ہوتا ہے، اور کیونکہ رومن کی برتھ ڈے تھی تو اینا اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ اسے اچھا لگے، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اینا کو روک کر پھر سے اسی لڑکی کو ڈھونڈنے لگا اور اینا باہر چلی جاتی ہے سگریٹ پینے کے لیے۔ رومن کو لگا کہ وہ ناراض ہے اس لیے وہ اینا کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پارٹی کے لیے لینے آئی تھی مگر تم الٹا ہی برتاؤ کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اسے رومن پر بھی شک ہو رہا تھا کہ کیوں اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہا تھا۔ رومن اسے سمجھا بجھا کر وہاں سے بھیجنے والا تھا مگر تبھی رومن کے باقی دوست بھی آ جاتے ہیں۔ اسے
लेने के लिए, मगर वो सिर्फ ऐना को इनके साथ भेज देता है, ये कहकर कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं बाद में आऊंगा। और अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरे में लड़की को ढूंढने लगता है, मगर वो इसे फिर भी नहीं मिली, इसलिए वो बाहर आ गया जहां इसके दोस्त अभी तक नहीं गए थे, इसलिए रोमन इनके साथ जाने लगा। रास्ते में भी रोमन अजीब बर्ताव करता रहा और पार्टी में आने के बाद भी इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लड़की बस इसके दिमाग में घूम रही थी। ऐना को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। तब इसके बाकी दोस्त पूछ लेते हैं कि रोमन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर इनकी बात का जवाब दिए बगैर वो एक रूम में चला जाता है। ऐना अपने दोस्त के साथ बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद जब वो वहां से चली गई तो इसके दोस्त के पास रोमन आ गया, यानी कि रोमन ऐना को धोखा दे रहा था। इस बेचारे की दोस्त देखती है कि रोमन की आंखें चमक रही हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है। इस बारे में रोमन को बताती भी है तो वो अपनी आंखें शीशे में देखने लगता है। वो फिर पागलों की तरह अपनी गर्दन हिलाने लगता है। तभी इसके डैड की कॉल आई जो कहते हैं कि कुछ देर पहले घर का अलार्म बजा है और मैंने कैमरा फुटेज में किसी को घूमते हुए भी देखा है। मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम जल्दी से घर जाकर देखो कि आखिर क्या माजरा है। तब रोमन घर जाने के लिए निकलने लगा। इसी बीच हम भी इसकी चमकती हुई आंखों को नोटिस कर लेते हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जरूर इसके साथ कोई गड़बड़ है। वो जब बाहर आया तो इसका एक दोस्त जबरदस्ती इसे इस पार्टी में डांस करने का कहता है। इस पर रोमन को इतना गुस्सा आया कि वो अपने ही दोस्त को बुरी तरह मार कर रख देता है। तभी इनके बीच में ऐना की दोस्त आकर लड़ाई छुड़वाती है, लेकिन रोमन इसे भी मारता है और फिर एक साइकिल लेकर घर आ जाता है। इसने जब अलार्म बंद किया तो इसके डैड की कॉल आई जो कहते हैं कि क्या कोई चोर घुस आया था और घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ। रोमन कहता है कि नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, मगर इसके डैड अजीब तरह से हंसने लगे, यानी इनके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। अब रोमन फोन बंद करके अंदर आ गया जहां इसे वही रिकॉर्डर मिलता है जो इस लड़की के पास था, जिसमें लैब में एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। रोमन घर में जगह जगह खून के निशान देखता है जिनका पीछा करते हुए वो बार तक पहुंच जाता है जहाँ वो लड़की इसे बैठी हुई मिलती है जो अभी भी चाकू से खुद पर वार किए जा रही थी। रोमन जल्दी से वो चाकू छीन कर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से घबराने लगा। तभी वो लड़की अपने अंदर वो एक डिवाइस निकालती है जिसे देखकर रोमन के होश उड़ जाते हैं। सब कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वो भागने लगा, मगर खिड़की से इसने कमांडोज को देख लिया जो इस लड़की पर तजर्बा कर रहे थे। वो इसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। कमांडोज लड़की को वापस ले जाने लगे, लेकिन इन्हें एहसास हुआ कि घर में कोई और भी मौजूद है। रोमन समझ गया कि वो इसके बारे में जान गए हैं, इसलिए वो फौरन वहां से भाग निकला। अचानक वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा, जैसे जोर जोर से हंसना और जमीन चाटना। इसने खुद को काटना भी शुरू कर दिया और उल्टा चलने लगा। ये देखकर कमांडोज ने इसे भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। ऐना ने रोमन को कॉल करके बात करने की कोशिश की, मगर फोन पर कोई और बात कर रहा था जो गालिबन कमांडोज थे। ऐना इन्हें रोमन समझकर बात करती है और कहती है कि तुमने जिस लड़के को मारा था इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, तुमने इतनी जोर से इसे कैसे मारा। कमांडोज ऐना से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो वो इन्हें अपनी लोकेशन बता देती है और एक टैक्सी में बैठकर रवाना हो जाती है। रास्ते में ऐना का रवैया अजीब होना शुरू हो जाता है। वो अपनी गर्दन इस तरह हिलाना शुरू कर देती है जैसे रोमन ने पहले हिलाई थी। ऐना की दोस्त की कॉल आती है और वो कहती है कि मेरे साथ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। फिर अचानक ऐना रोते हुए फोन बंद कर देती है। ऐना देखती है कि कमांडोज इसका पीछा कर रहे हैं। ड्राइवर उतरकर इनसे पूछता है कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। कमांडोज ड्राइवर को मार देते हैं। ये देखकर ऐना खौफजदा हो जाती है और खुद ही टैक्सी चलाने लगती है। कुछ फासले पर जाकर वो टैक्सी रोक देती है और अजीब तरीके से सड़क पर चलने लगती है। कमांडोज इसका पीछा करते रहते हैं। ऐना भागने लगती है, मगर वो लोग इस पर गोली चलाते हैं और हैरत की बात यह है कि वो फिर भी नहीं रुकती और भागती रही। एक क्लब में पहुंचकर ऐना मदद मांगती है और पुलिस को बुलाने का कहती है। वो बाथरूम में जाकर शीशे में अपने आप को अजीब तरह से देखती है, फिर अपनी चोट देखकर रोने लगती है। ऐना की दोस्त इसे स्टेशन पर बुलाती है और कहती है कि मेरे पास बाइक है, हम भाग निकलेंगे। कमांडोज क्लब में दाखिल होकर सबको मार देते हैं। ऐना खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है और अपनी दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। इसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। रास्ते में वो एक लड़की पर हमला कर देती है और अपना खून इस पर लगा देती है। फिर एक लड़के की साइकिल चुरा कर भाग जाती है। जब लड़का इसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इसे मारकर तालाब में फेंक देती है। जाते वक्त कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मुझे
समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शहर में खतरे के सायरन बज रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि कई लोगों के साथ ऐसे ही अजीब चीजें हो रही हैं। ऐना अपनी दोस्त के पास पहुंच जाती है जो इसे बाइक पर बिठा लेती है। ऐना अजीब तरीके से अपनी दोस्त पर अपना खून लगाने लगती है। ये देखकर ऐना की दोस्त उसे बाइक से नीचे गिरा देती है। इसने देखा कि ऐना जानवरों जैसी हरकतें कर रही है, इसलिए वो भागकर इससे दूर आ गई। तभी इसकी दोस्त के पास इसकी माँ की कॉल आई, जो कह रही थी कि शहर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो मेरी व्हील चेयर भी एक जगह पर अटक गई है। ये सुनकर वो जल्दी से अपनी माँ को बचाने के लिए जाने लगती है, मगर हम देखते हैं कि ऐना मुसलसल इसका पीछा कर रही थी। इतनी तेज भाग रही थी जैसे कोई बाइक हो, यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। जो चीज काफी हैरानकुन थी। अब इसकी दोस्त अपनी इमारत में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए अपने घर जाने लगती है, मगर बीच में ही इसकी लिफ्ट रुक जाती है। इसने ऐना की दोस्त घबराने लगती है। तभी वो बाहर ऐना की आवाज सुनती है, जो इमारत के लोगों को मार मार कर खा रही थी और इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी इनमें से एक कमांडो की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि शहर में एक तरह का वायरस इन्फेक्शन फैल गया है। अगर तुम उससे इन्फेक्टेड नहीं हुई, यानी कि उसकी लपेट में नहीं आई, तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लिफ्ट एक बार फिर चलने लगती है और वो अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर इसने देखा कि ऐना इसकी माँ को खा रही होती है और इनका पूरा सर ही इसने गायब कर दिया था। खाकर घबराते हुए इसकी दोस्त वहाँ से भागने लगती है। जी हाँ, तभी इसके सामने एक कमांडो आ गया जिसने मास्क पहना हुआ था। वो ऐना की दोस्त को पकड़कर इसकी आंखों को देखने लगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं, लेकिन वो इन्फेक्टेड फिलहाल नहीं हुई थी। इसलिए कमांडो अपना मास्क हटाती है, यानी कि वो एक लड़की थी। वो इसे वहीं रुकने का कहकर ऐना को मारने जाती है, मगर उल्टा ऐना ही इस पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे तैसे कमांडो उसे मार देती है। उसने कई बार ऐना के सर पर शूट किया, जिससे कि इसके सर का बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन जाहिर है इसे कमांडो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी, क्योंकि इसके पैरों पर ऐना का खून लग गया था। यानी कि अगर इन्फेक्टेड इंसान का खून नॉर्मल इंसान की जिल्द पर कहीं भी लगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और इतनी तेजी से फैलता है। और इन्फेक्टेड इंसान पूरी तरह वायरस फॉर्म में आने के बाद हद से ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब कमांडो ऐना की दोस्त को कहती है कि अगर तुम भी डायरेक्ट इन्फेक्टेड के पास नहीं गई तो तुम इन्फेक्टेड होने से बच सकती हो। मगर हम जानते हैं कि वो रोमन के करीब आई थी और इस पर ऐना का खून लगा था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। मगर इसने ये बात कमांडो को नहीं बताई, क्योंकि इसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि सारा माजरा क्या है। अब कमांडो इसे ये बताते हैं कि तुम इस जगह पर रहो जहां अंधेरा हो, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग रोशनी की तरफ तेजी से खींचे चले जाते हैं। फिर वो इसे गन देकर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कुछ देर बाद मैं इन्फेक्टेड बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। फिर कमांडो इसे दूसरी तरफ मुंह करने का कहती है और फिर खुद को शूट करके मार डालती है। जैसे अब हमें समझ आती है कि क्यों ये कमांडोज तमाम इन्फेक्टेड का खून लगे लोगों को मार रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये वायरस पूरे शहर में फैले और इससे तबाही हो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा तो हो चुका है और अब हम देखते ही देखते ऐना की दोस्त भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है। इसका बर्ताव बदलने लगा, वो पागलों की तरह हंसने लगती है और हम सुन पाते हैं कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो पहली लड़की, यानी कि एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट C39, इसकी वजह से ये वायरस पूरे शहर में फैला। इसने सबसे पहले रोमन को इन्फेक्टेड किया अपना खून लगाकर, फिर इससे कांटेक्ट में आने से बाकी दोस्त हुए और इनके जरिए वायरस आगे लोगों में फैलता गया और पूरा शहर इसकी लपेट में आ गया। अब कमांडोज ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के कहने पर कर रही थी ताकि वो इंसान को सुपर फास्ट सोल्जर बना दे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। उन्होंने अपने सब्जेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया था कि इसका खून लगने से बाकी लोग भी इसके जैसे ही सुपर फास्ट पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज होने के साथ साथ भयानक भी हो जाती है, यानी कि वो लोग पावरफुल तो बने मगर किसी उल्टे असर की वजह से वो इतने खतरनाक बन गए, यानी इन्फेक्टेड हो गए कि खुद को और बाकियों को काट काट कर खाने लगे। और क्योंकि ये चीज हर तरफ फैल गई थी तो जाहिर है इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मगर ऐसा हो सकता है कि कमांडोज इसका कोई हल ढूंढ ले जिससे वो इन्फेक्शन को, वायरस को रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।